You know that the chapter we last studies, that chapter is features in MS Word. Okay, and in last class the chapter is over on the topic is I think delete the text. Or our today's topic is using thesaurus. We start today's topic with the using thesaurus. आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा यूजिंग थिसोरस, हाउ टू यूज थिसोरस एंड व्हाई वी यूज थिसोरस. Okay, this is the very good topic and important topic of word. Now the start the topic. Your first topic, today's first topic is using thesaurus. Mean, what is thesaurus? A thesaurus is a list of words grouped together containing synonyms and antonyms. Like thesaurus in a word, thesaurus is like a dictionary that have synonyms of and synonym and antonym of words. You see the dictionary, you see the synonym of other words, but in some dictionaries we also have the antonyms. Thesaurus is like that. In thesaurus, when you when if you want to type some word like together, like to type the together word in your document, and you want to search the synonym and antonym of together, you only select that word and open the thesaurus. You able to see that? I also show you the example, live example of that. Okay, MS Word provide a thesaurus through which you can find words to express meaning more accurately. Like some word is difficult to understand what is the meaning of that word, so for better understanding, for more accurately, we use the thesaurus. Okay, I'll show you the with the example. First we read it, and where we found the thesaurus option. In when you see the in the screen, you see the window. This is the word window. If you want to open the thesaurus, first you open your review tab. You see the we have some tabs in a MS Word or other word processor software. Especially we talk about MS Word, you see the some tabs like file tab, home tab, insert tab, page layout tab, like meaning tab, view tab, in which we go to the review tab. You see the review tab. You when you click on review tab, and in a review tab the ribbon is appear, review tab appear, ribbon is appear, and in which you see the thesaurus option in a right hand side, sorry, left hand side. And how to work the thesaurus? First you select the word. आपको वर्ड सेलेक्ट करना है जिसका आपको सिनोनियम सर्च करना है या एंटोनियम सर्च करना है, एंड देन ओपन द thesaurus. Then open the thesaurus. You see the simple the word meaning, word synonym and antonym is appear in front of you. I also show you with the example. Like I open the other editor software. This is not a word, but thesaurus is working is same in all editing, in all word processor software. Like I type the some words in it, like excuse, sorry, spelling is mistake, accuse, together. Okay, meaning, that's some type of word. Like I want to search the synonym and antonym of excuse. So how to do it? First select that word, like I select the excuse, and then go in the review tab. I select the review tab, and in which left side you see the thesaurus, and then click on thesaurus. To open the thesaurus, shift key, to open the thesaurus, shortcut key is shift F7. एक thesaurus को ओपन करने का शॉर्टकट की भी होता है. आप वर्ड को सिलेक्ट करो या विदाउट सिलेक्शन भी कर सकते हो. शिफ्ट एंड F7 की को प्रेस करना है, एंड आपका thesaurus ओपन हो जाएगा. And when I click on thesaurus, you see the thesaurus option is appear in front of you. Okay, and you also see the words, synonym and antonyms, the all meaning of that words. Let us select excuse. You see the like what is mean excuse. Okay, explain. These are the synonym and antonym. आप इसमें different words, like आपको किसी other word के बारे में search करना है जो आपने word type भी नहीं किया है, तो आप simply इसमें type भी कर सकते हो. Like I want to search the meaning of share. Okay. And you see the antonym and synonym of share, the portion, part, percentage. You see the different meanings, multiple meanings of the synonym. That called synonyms, and also the antonyms of that word. Okay,
when you goes down you also take the antonium of that word. आपको इसमें antonyms भी मिलेंगे उस words के. Antonyms means in Hindi we call the पर्यायवाची, and synonyms means same words, लेकिन जिनका same meaning होता है. जो excuse के meaning है वही same उसका meaning है. Synonym and antonyms. You all know what is a antonym and synonym. Okay. Now you know how to search the words antonym and synonym in a thesaurus. Okay. Your next is this allowed you to search the also see the shortcut key of open the thesaurus is shift plus F7. Okay. And अगर आपको thesaurus open करना है, सॉरी क्लोज करना है, लाइक जैसे मैंने शॉर्टकट की से ओपन किया है और मुझे क्लोज करना है, सिंपली इसमें क्लोज बटन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सिंपल क्लोज करो, आपको thesaurus बंद हो जाएगा. और ओपन करने का भी सिस्टम सेम है, शिफ्ट F7, and otherwise go in a review tab and click on thesaurus option, and thesaurus option is present in front of you. And you also the shortcut key C to suggest other words with a similar meaning to word you have selected. Like I word the select together and I want to the shortcut, I use the shortcut key like Alt or plus E, Alt plus R plus E. Now I press Alt R plus E. What happened in which you see Alt R plus E. I think in that word processor software this shortcut is not working properly because this is not a word. But अगर आपको एक सिमिलर वर्ड का सजेशन निकालना है, इसमें इजीली निकालना है, तो आप सिंपली ये Alt plus R plus E शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो. ये नॉर्मली कभी का वर्क करती है, नहीं करती है, क्योंकि डिफरेंट वर्जन्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज दिस जो ऑप्शंस आपको फीचर्स शो हो रहे हैं ये 7 के अकॉर्डिंग है, वर्ड 2007. But in today's computer, in some laptops or computers, we have Word 2010, MS Office 2010. In some software, in some laptop, in computer, we have MS Office 2016. तो उसमें vary करता है, different vary करता है shortcut keys. Okay. And like second is using thesaurus is now open, and your next topic is finding and replace text, and like how to find and how to replace the text. And what is finding? Like if you have a large document in your Word, like large document, I also show you the example of that thing. Sometimes you need to change the word or text with some other word or text. Like you type the some document is a large document, आपने document type किया word में, like in that document also, in that editor also, I type the some lines, like sometimes I type the some line. For the example, you need also copy and paste again and again. Like I type the some words in front of you, and अगर ये डॉक्यूमेंट बड़ा है, अभी मैंने क्या किया, सिमिलर वर्ड्स को कॉपी किया एंड पेस्ट किया अगेन एंड अगेन. अगर आपने सेम डॉक्यूमेंट्स टाइप किया है, लाइक 2-3 पेजेस का डॉक्यूमेंट टाइप किया है, एंड यू वांट टू सर्च द वन वर्ड इन इट, अगर आपको एक वर्ड सर्च करना है तो कैसे, इसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड एक ऑप्शन होता है आपके वर्ड में, वी यूज द फाइंड ऑप्शन. एंड वेयर टू आपको ये फाइंड ऑप्शन मिलेगा कहाँ, ये आपको होम टैब में मिलेगा. यू सी द होम टैब इन MS Word. In right hand side you see the find and replace option. Okay, but in this editor, in this word processor, we also have the in right side, in home tab, in right side we have find and replace option. You see find and replace option, and if you want to search the find, if you click on find, this want to some word, आपसे कोई word मांगेगा, आपको कौन सा word find करना है, which word you want to find. like आपके पास एक लिस्ट है, ये एक लिस्टिंग में बहुत अच्छा काम आता है. आपके पास एक लिस्ट है, काफी बड़ी लिस्ट है, लाइक 100 पेजेस की, उसमें आपको एक नेम सर्च करना है, एक नेम सर्च करना है. एक तो इसका एक प्रोसेस ये होगा, आप एक लिस्ट को, एक लाइन को रीड करो, तब आपको वर्ड मिलेगा. और सिंपल मेथड क्या है इसका, आप फाइंड फीचर को यूज करो. इट्स सो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना. इसका शॉर्टकट की भी होता है, Ctrl+F से आप डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हो, लाइक दैट. ये Ctrl+F शॉर्टकट की प्रेस करोगे, डायरेक्ट आपका फाइंड रिप्लेस वाला ऑप्शन ओपन होगा. अब लाइक मुझे इसमें वर्ड सर्च करना है, लाइक नीड वर्ड सर्च करना है. यू सी मैं जब भी मैं नेक्स्ट करूंगा, यू सी द नेक्स्ट ऑप्शन इन इट, फाइंड नेक्स्ट.
एवरी टाइम, जितने भी टाइम नीड इसमें होगा उतने टाइम आपको शो करेगा ये, लाइक उसको आपको स्विच भी करेगा, ये आप देख सकते हो। You see the highlighted or need again and again because need इसमें repetitive है, काफी टाइम है। अगर ये need सिर्फ एक बार होता और ये काफी बड़ा डॉक्यूमेंट होता तो आपको need ढूंढने के लिए पूरा रीड करना पड़ता डॉक्यूमेंट कि need वर्ड लिखा कहाँ पर है। But in Word we simply search that word with the help of find option, and we also have the replace option. And what is replace option? The find word is used to search for a particular word. आपने सिंपली आप वर्ड को सर्च कर सकते हो, पर्टिकुलर वर्ड को उसमें टाइप करके और सेंटेंस को टाइप करके, टेक्स्ट को टाइप करके। एंड रिप्लेस कमांड रिप्लेसेस द टेक्स्ट और वर्ड विद अ न्यू टेक्स्ट। लाइक फर्स्ट यू सर्च द वर्ड एंड आफ्टर दैट यू वांट टू रिप्लेस दैट वर्ड विद अदर न्यू वर्ड। आपने एक वर्ड टाइप किया और आप चाहते हो कि उस वर्ड को रिप्लेस करना किसी अदर वर्ड से विद अदर सिनोनिम, तो आप ये भी इजीली कर सकते हो। इसके लिए भी एक इजी मेथड है, मैं आपको शो कर देता हूँ। इसमें एक साइड में आपको रिप्लेस, यू सी द रिप्लेस ऑप्शन, लाइक फाइंड व्हाट वर्ड। फर्स्ट आप वो वर्ड फाइंड करोगे जिसको आपको रिप्लेस करना है, लिखोगे उसमें लाइक नीड, एंड मुझे किससे रिप्लेस करना है? मुझे रिप्लेस करना है टू से, PO। अब आप यू सी द दैट थिंग, जहां जहां पर आपका इसमें नीड होगा वहां पर टू हो जाएगा। एंड हाउ, कैसे हो जाएगा? फर्स्ट यू सी रिप्लेस ऑल, इसमें आप देखोगे रिप्लेस ऑल का ऑप्शन है। रिप्लेस ऑल, अगर वन रिप्लेस करोगे तो वन टाइम होगा, रिप्लेस ऑल कर दोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी नीड है वहां पर टू हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा यस, ओके, एंड यू सी जहां जहां पर इसीलिए आपको बताएगा भी कितने टाइम किया है इसने, 60 रिप्लेसमेंट्स की है। दैट मीन द नीड इन योर डॉक्यूमेंट इज अ 60 टाइम। ये 60 टाइम था, इसे 60 टाइम चेंज कर दिया। देखो आप जहां पर देख रहे हो, जहां जहां पर नीड था वहां 2 हो गया। अब आप खुद ये सोचो कि अगर आपको एक एक वर्ड जाकर खुद करना होता, नीड हटाना पड़ता और 2 लिखना होता, कितना टाइम कंज्यूम जो हो जाता है। 60 टाइम करना होता आपको। ये आपको कुछ नहीं करना, सेम एक ऑप्शन खोलना है, रिप्लेस में फर्स्ट वर्ड लिखना है जो आपको रिप्लेस करना है और सेकंड लिखना है किससे करना है। तो सिंपली उस वर्ड को रिप्लेस ऑल करो और जहां जहां पर वो वर्ड है उसका चेंज हो जाएगा। ये एक डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छा फीचर है डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए MS वर्ड में। MS वर्ड में क्या, ये सब एडिटर में है, क्योंकि जो आपको स्क्रीन पर जिसमें आई शो द एग्जांपल ऑफ दैट एडिटर, दैट्स अ डिफरेंट एडिटर। Like this editor we called WPS office, like MS office, this office is WPS office। तो simply working same है। अब सब वर्ड प्रोसेसर, कोई भी वर्ड प्रोसेसर ले लो, वो MS वर्ड, LibreOffice, WPS, ओपन ऑफिस, वर्किंग इज सेम, बट अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग हो जाती है। सम फीचर्स इन इफ यू वर टॉक अबाउट द ओपन ऑफिस एंड LibreOffice, दैट ऑफिस फीचर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज सबको इजीली समझ में नहीं आते हैं। ओके, एक बहुत सिंपल और इजी फीचर है फाइंड एंड रिप्लेस, एंड यू ऑल नो हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस। सेम हेयर, सेम लाइक दैट यू आल्सो रिप्लेस द सेंटेंस। आप एक पूरे सेंटेंस को भी रिप्लेस कर सकते हो विद एक अदर न्यू सेंटेंस। लाइक कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपने अगेन एंड अगेन रिपीट किया है अपने डॉक्यूमेंट में, एंड नाउ यू वांट टू नो, आई वांट टू रिप्लेस दैट सेंटेंस और टेक्स्ट विद अदर टेक्स्ट। Okay, you simply type first that text that you want to replace, and second कि आपको किससे रिप्लेस करना है। तो सिंपली रिप्लेस ऑल करोगे और जहां जहां पर आपका वो सेंटेंस लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, वो रिप्लेस हो जाएगा सेकंड वाले से जो आपने चूज किया है। ओके, एंड इसमें सेम वही जो मैंने आपको अभी लाइव करके दिखाया, वही चीज इसमें आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। ओके, next is our next topic is changing text case, and this is the also very important topic. What is case, what is change case, what is the feature of changing text case? That's also the important feature, that easy to documentation in MS वर्ड और एनी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। ये आपकी बहुत हेल्प करता है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन करने में। लाइक कैसे हेल्प करता है? समटाइम यू इन अ डॉक्यूमेंट यू मे नीड टू चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट। लाइक आपने टाइप करना स्टार्ट करा और जितना भी आपने लिखा सब कैपिटल स्मॉल लेटर में लिख दिया, एंड नाउ यू आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन यू रियलाइज some in some place you want to mention the capital letter, or like in when we type in a English copy or English notebook, you see after the full stop we start with the capital letter, and
इन अ कंप्यूटर अगर कहीं कहीं पर ऑटो करेक्ट हो जाता है, एक सिंपल ऑटो करेक्ट हो जाता है, बट सब कहीं कहीं जगह नहीं होता है. इन सम वर्ड प्रोसेसर एडिटर नॉट अप्लाई दिस कमांड ऑटोमेटिकली. तो इसके लिए हम चेंजिंग टेक्स्ट केस यूज करते हैं. लाइक अगर आपको कहीं पर सारे वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में करना है तो कैसे करेंगे, सबको स्मॉल लेटर्स में करना है कैसे करेंगे, कहीं पर आपने सारा डॉक्यूमेंट कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया है. लाइक इसमें हर उसका अलग अलग है. लाइक इसमें टोटल 5 केसेस होते हैं. वी हैव द 5 केसेस. फर्स्ट इज सेंटेंस, सेकंड इज लोअर केस, थर्ड is uppercase, fourth is capitalize each word, and the next last is toggle case. In sentence case, what happen in a sentence case? If we choose the sentence case, the first character in the sentence will be in uppercase and rest will be in lower case. अगर आप sentence case choose करते हो तो आपका sentence है ना, जो full stop तक one sentence होता है, तो उसका जो हर sentence का first character capital हो जाएगा and always be in lower case. And if we choose lower case, all letters in a small letters, all. तो आपने कोई कैपिटल लेटर भी चूज किया है, अगर आप लोअर केस चूज कर दोगे तो ऑल लेटर्स आपके कैसे हो जाएंगे, स्मॉल में हो जाएंगे. एंड इफ यू चूज अपर केस, ऑल कैरेक्टर्स इन विल बी इन अपर केस, लाइक कैपिटल लेटर्स सारे कैसे हो जाएंगे, अपर कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे. एंड इफ यू चूज कैपिटलाइज ईच वर्ड, if you choose capitalize each word, after that every word first character is be capital. अगर आप capitalize each word use करते हो तो हर word का first letter capital हो जाएगा. And if you choose the toggle case, this is the last case. अगर आप toggle case use करते हो, it is a reverse of capitalize each word. ये capitalize each word option का reverse है. इसमें क्या होगा, आपका जो first letter है, every word first letter is small and other letters will be कैपिटल. यू सी, जैसे टॉगल केस लिखा है ना, फर्स्ट टी स्मॉल है एंड ओ डबल जी एल ई कैपिटल में है एंड अदर वर्ड का सी स्मॉल है और बाकी ए एस ई कैपिटल में है. लाइक दैट, और अब यू चूज अ टॉगल केस, यू आर ऑल डॉक्यूमेंटेड द कन्वर्टेड ऑन दिस फॉर्मेट. एवरी वर्ड फर्स्ट लेटर इज स्मॉल एंड अदर लेटर्स इज कैपिटल. ओके, एंड इसकी वर्किंग किस तरह से होती है? So I also show you the working, how that the work of that cases features, and like where we find that cases. I also show you the example. Like I also type. We use this document only in Word. In Word document, change case. Okay. In that document, sorry, in that editor, if अगर आपको ये features MS Word में search करना है, that you feature find in a home tab and see the capital A and small a option. आपको एक option मिलेगा जिसमें capital A and small में मिलेगा. First you select on home tab and after that click on home tab on the ribbon. You see the A and A plus option. That's a change case button. We call that change case button. And after click on that option, the menus appear. Some menu appear in which you see the all cases, sentence case, lower case, upper case, capitalize each word and toggle case. Like that. आपको कुछ इस टाइप से आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा. लाइक इफ यू वांट टू, लाइक अभी मेरे जो डॉक्यूमेंट मैंने इसमें स्क्रीन पर क्रिएट कर रखा है, इसमें कहीं भी मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया. दैट मींस ये कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, दिस द होल डॉक्यूमेंट इज अ वन लाइन. जहां जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे वो वन सेंटेंस नहीं होता है, वो पूरा एक सेंटेंस ही होता है. और दैट मीन द ऑल सेंटेंस इज स्मॉल लेटर. एंड फॉर अप्लाइंग द चेंज केस, फर्स्ट यू सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट, सॉरी कंटेंट, टेक्स्ट. अगर आपको मुझे इस सारे टेक्स्ट पे कोई भी केस अप्लाई करना है तो फर्स्ट में क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा. और अगर आपको सारा ही सिलेक्ट करना होता है तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए. मैंने कंट्रोल प्लस ए यूज करा एंड सेलेक्ट द होल कंटेंट. ओके, and now open the change case. You see the, if I choose the sentence case, कुछ नहीं होगा, nothing change. Something is change, but इसमें कोई full stop ही नहीं है, आपको वो change नहीं दिखाई देगा. क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इसमें कोई full stop नहीं है. And what happen when you choose a sentence case? Every sentence first word will be capital. And when इसमें तो full stop ही नहीं है तो sentence कहाँ ढूंढेगा? तो उसने सिर्फ क्या करा, पूरे इसका पूरे टेक्स्ट का फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर दिया. You see the first word of the sum, like that, this word. You see that word is a capital.
इसका मतलब इसने लास्ट, इसे लगा लास्ट में फुल स्टॉप है तो इसने फर्स्ट वर्ड किया, क्योंकि इसे और कोई फुल स्टॉप नहीं मिला। नाउ वी यूज द सेकंड केस, हम सेकंड केस यूज करते हैं। हाउ द वर्किंग ऑफ सेकंड केस, इफ वी चूज द लोअर केस, अगर हम लोअर केस यूज करते हैं, एंड नाउ यू सी द फर्स्ट लेटर इज आल्सो बी स्मॉल लेटर्स। अगर हम सबको सेलेक्ट करके लोअर केस अप्लाई करेंगे तो सारे वर्ड्स कैसे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे दोबारा से। एंड अगेन सेलेक्ट, एंड नाउ वी चूज द अपर केस। If we choose the upper case, you see the every word, every character is now capital letter. If we choose the upper case, the upper case is also called capital letter. That means if we select the document and choose the upper case, you see the every document text will be converted in a capital letter. Then I'll also show you on the screen. Now we use the next case. Next case is the toggle case. In MS Word, the next is capitalize each word, बस फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर हम capitalize each word यूज करते हैं। Now you see every word first letter will be capital। अब इसमें आप देखोगे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है। This is the feature of capitalize each word। And now we choose the toggle case। Okay, that's a toggle case। And when we choose a toggle case, you see every word first letter is small and every word first character or letter is small and other is capital। You see आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो सिंपल कुछ इस तरह से वर्किंग होती है आपके केसेस की, आपके कंप्यूटर में। एंड ये भी सेम आपको आगे वर्किंग ही दिखा रखी है कि किस तरह से वर्किंग करता है। अब डॉक्यूमेंटेशन में अब ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है हर बार, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितना भी सिलेक्ट कर सकते हो, कितना भी। 1 लाइन को भी करना है 1 लाइन को कर लो, ओके। आपको 1 वर्ड को करना है 1 वर्ड पे अप्लाई कर दो। तो मैंने तो ऑल सिलेक्ट पे करके दिखाया, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग माउस का यूज करके जितना आपको पोर्शन सिलेक्ट करना है उतने पोर्शन को सिलेक्ट करके, बट जितना आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ उतने पे ही केस अप्लाई होगी, ऑल पे नहीं होगी। बिकॉज फर्स्ट फीचर ऑफ दैट केसेस इज फर्स्ट यू सेलेक्ट दैट टेक्स्ट। आपको फर्स्ट क्या करना है, सिलेक्ट करना है, देन यू अप्लाई द टेक्स्ट। अगर मैं देखो मैं सिलेक्ट नहीं करता कुछ भी, तो मैं सिलेक्ट टेक्स्ट अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, यू सी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सेंटेंस कैसे किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया। अगर मैं नीचे की 2 लाइन सिलेक्ट करता हूँ और अब सेंटेंस कैसे अप्लाई करता हूँ, यू सी जितना मैंने पोर्शन सिलेक्ट किया सिर्फ उतना कन्वर्ट होगा सेंटेंस केस में। अब मैं ऊपर की 2 लाइन सिलेक्ट करता हूँ और उसे किस में कन्वर्ट करता हूँ, नेक्स्ट केस में। जो भी केसेस है नेक्स्ट लोअर केस में, ये सब लोअर केस में हो गया। ऊपर की 2 लाइन सिलेक्ट करके कन्वर्ट करता हूँ अपर केस में, लो ये अपर में हो गया। और टॉगल में तो हो ही रखा है, तो जो ऊपर की 2 लाइन है सारा है पोर्शन, मैं उसे सिलेक्ट कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड में। एंड नाउ यू सी इन दैट डॉक्यूमेंट मैं 5 के 5 केसेस अप्लाई कर दिए। ऊपर किया कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसके नीचे किया टॉगल केस, उसके नीचे अपर केस, फिर आपका लास्ट में सेंटेंस केस, और उसके ऊपर किया लोअर केस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है सारा आपको डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना है। ओके